Hello students, welcome to mathematics class. So in our previous class we are learning about the squares and square root. We have started our chapter number 3 and you came to know about the squares. What are the numbers which we call the square. So we learned that the exponent which have the power 2 is called the squares. Okay, if any number have the power 2, that number will call the square. Okay, and the multiplication or the product of that number is called the square number. Okay, so 2 raised to power 2 is called 2 square, and the product of that square will give you the square number. So 4 is the square number of 2. Okay, so and we also seen that there are some perfect square and non-perfect square. Okay, so if we see that 7 square equals to 49, so 49 number is the perfect square number, but 12 is not a perfect square number. Okay, and why it is? Because perfect square number are those number which are the product of two identical numbers. Okay, as I had written here. So if you see, the 7 square of 49 is the product of 7 and 7. Okay, so 7 is the identical number, but here 12 is the product of 3 and 4. Okay, so 3 and 4 are not identical. Identical, I simply tell you that the number should be same. Okay, the perfect square number will be those number for which you have to multiply with itself. Okay, if you see the 7, so 7 multiplied by 7 will give you 7 square, that is 49. So 49 is a perfect square number, but 12 is not perfect square. So I think you get the point here, which is okay. So that was based on your homework, in which you have to find the perfect square number on non-perfect square. Okay, then we have seen some square numbers 1 to 10 and 11 to 20. Okay, and then we say some the pattern here. The ones place of a square number and the ones place of this number, or sorry, ones place of the simple number. Okay, so if I see the ones place of the 25 square, okay, so 5 is the ones place at the square before the squaring, and if we see the number or the square number, we also said the ones place is 5. So on the basis of this conclusion, we have written some points. Okay, and then we learnt about the odd and even square number, that whenever you square a even number, you always get a even square number, and if you square a odd number, you always get an odd square number. Okay, so and also we have seen that if you square any number which ended with 0, you will always have even number of zeros at the end. You will not have odd number. Okay, you will not have odd number, you always have even number of 0. Even if the number which you are squaring has odd 0, but the square number will always have the even number of 0. Okay, so I think you have got our homework. Okay, तो वर्कआउट वाला सबसे मुझे लग रहा है कि आपको नहीं हुआ होगा. सो इन द वर्कआउट क्वेश्चन यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल. Okay, make a right angle triangle ABC. Okay, this is a 90 degree. Suppose this is 3 and this is 4. It is almost 3 and 4. Okay, so you have to verify that AB square plus BC square equals to AC square. Okay,
and this is 5. Okay, you have to measure, you have to make a triangle with this measurement or any other measurement. Okay, and from this measurement you have to verify this. Okay, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को सॉल्व करते गए और इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर में जो आए वैल्यू आए उनको यहाँ पे लिख दिया, बट दैट इज़ नॉट how you supposed to do this question. Okay, you have to make a triangle with some measurement, of course, and with that measurement you have to prove the Pythagoras theorem. Okay, so AB we have here is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, and AC is 5 centimeter. Okay, so AB is LHS देख लेते हैं हम इसका. LHS is AB square plus BC square. So AB square is 9, 3 square plus 4 square equals to 9 plus 16 equals to 25. Okay, which is 5 square. And if we see the RHS part, RHS is AC square is 5 square, which is equals to 25. So from this we say that LHS is equals to RHS, and then we will say that hence it is verified. Okay, this is how you were supposed to solve this question. Okay, so now move to our next topic, or our first topic of today's lecture. Okay, so the topic is interesting pattern involving squares number. Okay, suppose I write two consecutive square number. Okay, if I take 4 square and 5 square. Okay, so 4 square is 16, 5 square is 25. Okay, now you see that between 4 and 5, or between 16 and if you see that 4 square and 5 square equals to 16, 25, and you see that between this number 16, numbers between 16 and 25 are not perfect square. Okay, because 16 and 25 are the perfect square, and the numbers between them are non-perfect square. Okay, non-perfect, or we can say non-square number. Okay, तो अगर आप देखोगे कि इनमें से कितने नंबर है नॉन स्क्वायर नंबर, तो आप पहले क्या करेंगे, 16 से लेकर 25 के बीच में जितने भी नंबर उनको लिख लेते हैं. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Okay, so 16 and 25 are the perfect square number. Now we have to find what are the numbers, how many numbers are between two perfect square number, how many non square number. Okay, कितने non square number दो perfect square number के बीच में होंगे. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So अगर यहाँ पे देखिए हम तो 8 है. Okay, but can we find it in another way, कि हमेशा हमको बस इसे लिखना पड़ेगा कि 16 से लेके 25 तक हमने लिखा और फिर नंबर काउंट किए. ये तो स्मॉल नंबर्स लेते हैं. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर की. तो अगर ये तो मैंने स्मॉल नंबर्स लिखे, बट अगर मैं लार्ज नंबर ले लेता हूँ इससे थोड़े से, जैसे कि अगर मैं 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर ले लिया, तो उस केस में क्या होगा. तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पे हम एक पैटर्न डेवलप करेंगे. कैसे, वो देखते हम कैसे. ठीक है, सपोज इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 4 स्क्वायर from 5 square, what will I get? 5 square is 25 minus 4 square is 16, you will get 9. Okay, but if you see the non-square number of non-square terms, or the number of non-square numbers between two perfect consecutive square numbers are 8 here. Okay, and if we see the difference is 9, so whatever the difference is we have, we subtract 1 from it. So then we get the number, or the non-square number, how many non-square numbers are between them. Okay, similarly if we take another example just like this, we take 6 square and 7 square. So we subtract 7 square and 6 square, what do we get?
7 square is 49 minus 6 square is 36. So we have 13 here. Okay, but but how many non-square terms are there in between 49 and 36? We can count it by 36 here. So 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 and 49. So how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you see that there are 12 non-square numbers. Okay, so if you see here, if you subtract two consecutive square numbers, we get a number. Okay, so if you subtract one from it again, then you will get the number of non-square terms, isn't it? But हर बार स्क्वायर्स निकालना और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना, ये थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन इसमें लग रही है, isn't it? You require some calculation to subtract squares from it. Okay, so is there any other way to do this? क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर आपको नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म्स फाइंड करना है किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में, तो एक तरीका ये है कि आप उनको लिख लो पहले और आप उनको काउंट कर लो, तो आपको एक तरह से ये मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप दो नंबर्स के जो दो नंबर ले हैं उनके स्क्वायर्स को आप सब्ट्रैक्ट करो और जो रिज़ल्ट आए उसमें से फिर आप 1 को फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको नंबर ऑफ़ नॉन स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। बट हर बार ये सब्ट्रैक्ट करना इज़ अ लेंदी प्रोसेस, इज़न्ट इट? यहाँ पे आपको स्क्वायर्स याद रहना चाहिए, बट अगर मैंने लिख दिया 24 स्क्वायर और 25 स्क्वायर के बीच में कितनी टर्म्स है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको याद है कि 24 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है? नो, इज़न्ट इट? सो नाउ वी विल डेवलप अ पैटर्न or a general way. Okay, we see a pattern here. Okay, from this pattern we will develop a general way to find the number of consecutive non-square number, to find the number of non-square number in a between the consecutive square. Okay, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 और 7 में, तो अगर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ n ले लेता हूँ मैं 6, तो 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 6 + 1 दैट इज़ n + 1, इज़न्ट इट? अगर n 6 है, n की जगह मैंने 6 की जगह मैंने n रखा तो n + 1 हुआ, सो दैट मीन्स 6 कैन बी रिटन एज n एंड 7 इज़ n + 1. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया है, मैं अब यहाँ उनकी जगह ये वैल्यूज़ रखता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इज़ n + 1 स्क्वायर, तो n + 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, बट जो भी नंबर आता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो डिफरेंस हमको मिलता है, उसमें से हम लास्ट में फिर एक 1 को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, इज़न्ट इट? तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो n + 1 का स्क्वायर का मतलब ये है कि n + 1 जो है वो 2 बार लिखा है, इज़न्ट इट? माइनस n स्क्वायर माइनस 1. So if you multiply this, you will get n square plus 2n plus 1 minus n square minus 1. Okay, I know you don't get the multiplication here, but we will see how it is done in our later chapter. Okay, तो अभी आप बस ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपको ये याद नहीं करना है, मैं इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको ध्यान रखना है। सो n square get cancel here and 1 get cancel from 1 here, so you get 2n. ओके, तो अगर आप देखेंगे, आप जो स्क्वायर्स है उनको सब्ट्रैक्ट किया आपने, सब्ट्रैक्ट आने के बाद में आपने 1 में जो रिज़ल्ट आया उसको फिर आपने 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको एक जो नंबर मिला, आपने वही बोला है कि उतने नंबर ऑफ़ नॉन स्क्वायर टर्म्स होंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर है उनको सब्ट्रैक्ट किया और फिर जो उनका रिज़ल्ट आया उसमें से फिर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या होगा? नंबर ऑफ़ नॉन स्क्वायर टर्म्स। ओके, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स
का ही स्क्वायर ले रहे हैं। ओके, और नंबर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में ही हम ये बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ओके, सो स्क्वायर नंबर आर 2n। अब ये तो मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया, बट हाउ कैन वी वेरीफाइड, हम एक को चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम, जो हम जिस एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया 4 and 5। ओके, तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आपको नॉन स्क्वायर टर्म फाइंड करनी, तो कैसे करेंगे आप? सो जो रिज़ल्ट है वो है 2n। ओके, और n क्या था? n अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 7 में हमने n लिया था स्मॉलर वैल्यू को, ठीक है, 6 लिया था, 6 और 7 में स्मॉलर वैल्यू 6 है, तो जो इसमें n लिया था हमने वो स्मॉलर वैल्यू ली थी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, n जो लेगा हमेशा हम स्मॉलर वैल्यू ही लेंगे। तो n इक्वल्स टू 4, सो दैट मीन्स 2n इक्वल्स टू 8। So that means between 4 and 5 square there are 8 non-square numbers। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने जब इनको फाइंड किया तो क्या निकला था? 8 निकला था। दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज ट्रू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 6। सो नॉन स्क्वायर नंबर क्या होंगे इसमें? नॉन स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 2n which is equals to 2 into 6 equals to 12, isn't it? यहाँ पे भी हमारा आंसर 12 ही आता। So you see that we have developed a result from these patterns and now we don't have to do any calculation। okay, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सिंपली एक जो नंबर है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में से आपको जो स्मॉलर वैल्यू है उसका रखना है n की जगह और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इज इट सिंपल और नॉट? ओके, very simple। So now we move to our next topic। okay, so what is our next topic? Our next topic is squares of odd number as a sum of two consecutive pattern। okay, so ये आपको मैं बताता हूँ क्या करेंगे इसमें। आपको 2 लाइन छोड़नी है पहले, ठीक है, आपकी कॉपी में 2 लाइन छोड़नी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक स्क्वायर नंबर, ऑड स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ऑड स्क्वायर में नंबर मैंने लिखा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो क्या मैं इस 9 को एज अ सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मतलब ये कि मुझे 9 को जो 3 का स्क्वायर है उसको 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? 9 को लिखता हूँ मैं 4 + 5, isn't it? तो मैंने यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है उसको सम के फॉर्म में लिखा है, वो भी जो सम लिया है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का है। ओके, सिमिलरली अगर मैं 5 स्क्वायर लेता हूँ, 5 स्क्वायर इज 25। सो कैन आई राइट 25 इज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? यस आई कैन, which is 12 + 30, isn't it? 12 + 13 is 25। Similarly 7 square 49 equals to 24 + 25। okay, so you see we can write any odd square number, okay, any odd square number as the sum of 2 consecutive positive integer। okay, but here lies the problem ये है कि अगर मैं ये तो मैंने स्मॉल नंबर्स लिए, स्मॉल ऑड नंबर लिए हैं, तो ये तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं लार्ज ऑड नंबर ले लूँगा तो उस केस में क्या होगा? जैसे कि अगर मैंने 21 स्क्वायर लिया तो 21 स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे? एज अ सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे 4 के बाद 5, 12 के बाद 13, 24 के बाद 25। ऐसा नहीं 24 के बाद 26 से लिया अपन ने। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज़ आवर टॉपिक ऑफ दिस। ओके, तो टॉपिक है हमारे पास में स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर एज द सम ऑफ 2 consecutive positive integers। okay,
ये ही है हमारा टॉपिक जो हमको अभी पढ़ना है। सो यू सी स्मॉल नंबर से तो हम ठीक है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज नंबर में मिल जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे। यह ध्यान रखना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ ऑड स्क्वायर नंबर के बारे में है, ठीक है, इवन स्क्वायर के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये जो हम अब एक जो बाद में एक है ना आपको जनरल टर्म मिलेगा, जनरल फार्मूला मिल जाएगा, आप उसको सिर्फ ऑड नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हैं, इवन नंबर पे बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। सो नाउ सपोज 3 स्क्वायर जो पहले छोटे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 3 स्क्वायर को मैंने लिखा है 4 + 5, क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर - 1 बाई 2, क्या लिख सकता हूँ, कैसे चेक कर लेते। 3 स्क्वायर इज 9 - 1 बाई 2, 8 बाई 2 = 4, सो 4 इज अगेन = 4, सो दैट मीन्स हम 4 को 3 स्क्वायर - 1 बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 5 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या चेक कर लेते हैं। 9 + 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 10 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, सो वी कैन राइट 5 एज द सम ऑफ 3 स्क्वायर and 1 divided by 2, okay। Now we will replace this value in place of 4 and 5 in here, okay। So 3 square equals to 3 square - 1 by 2 plus 3 square plus 1 by 2, okay, isn't it। एक बार देख लेते हैं, ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसी को हम आगे देखेंगे कि क्या करा था हमने यहाँ पे। अब एक इस 12 और 13 को देखते हैं इस बार। 12 को, सो कैन आई राइट 12 एज 5 स्क्वायर - 1 बाई 2, चेक कर लेते हैं एक बार। 5 स्क्वायर इज 25 - 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 24 बाई 2 इक्वल्स टू 12, सो दैट इज़ राइट, ओके। नाउ हम 13 को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, 25 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 26 बाई 2 इक्वल्स टू 13, 13 इज इक्वल्स टू 13। सो नाउ वी use this value or replace 12 and 13 by this value, okay, because we can write 5 square - 1 by 2 in place of 12 and similarly for 13 also। तो यहाँ पे जो हमने 12 13 लिखा है उसकी जगह पे हम ये लिखते हैं एक बार। तो 5 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर - 1 by 2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 by 2, ओके। एक और देख लेते हैं फटाफट, कैसे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, इन दो बॉक्सेस जो मैंने आपको बनाया आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 स्क्वायर यहाँ पे भी है, 3 स्क्वायर यहाँ पे भी है, 3 स्क्वायर यहाँ पे भी है, 5 स्क्वायर भी यहाँ पे है, 5 स्क्वायर भी यहाँ पे। सेम कहाँ पे है, 1 - 1 दोनों में का आ रहा है, +1 भी दोनों में आ रहा है और डिवाइड में 2 भी आ रहा है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जो स्क्वायर ले रहे हैं हम उस स्क्वायर को वहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे 5 स्क्वायर लिखा तो 5 स्क्वायर का यहाँ पे लिखा, ओके। तो यू सी हियर वी आर राइटिंग an odd number, square of odd number is the sum of two consecutive positive integer, isn't it। 3 square - 1 by 2 is 4, 3 square plus 1 by 2 is 5, so you are writing the square of a odd number. Square of odd number is 3 square equals to 9, 9 is the sum of 4 plus 5 but in different way, because क्यों, क्योंकि आप स्मॉल नंबर्स स्क्वायर नंबर तक तो ठीक है, लेकिन अगर लार्ज नंबर्स पे जाएंगे तो कैसे करेंगे, ओके। सो दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ यूज फॉर हायर नंबर्स, ओके। तो जैसे अब मैं 21 का स्क्वायर जो है ये ऑड नंबर है, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इन द सम ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो 21 स्क्वायर को कैसे लिखना है, बस मेरे को 5 की जगह 21 लिखना है, तो 21 स्क्वायर - 1 by 2 प्लस 21 स्क्वायर प्लस 1 by 2, ओके। बट अगर आपको बोला है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव 2 इंटीजर लिखना है तो आपको इनको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 21 स्क्वायर इज 441 - 1 by 2 प्लस 441 प्लस 1 by 2, ओके। देन 441 बाई, तो ये हो जाएगा 440 प्लस 442 by 2, सो ये हो जाएगा 220
ये हो जाएगा 2 2 1. ओके, so you are writing an odd square number in the as the sum of two consecutive positive integer, isn't it, by using this method. Okay, so you see we can write any odd number square as the sum of two consecutive positive integer by using this method. Okay, then to the next topic. So if you see 1 square which is equals to 1, we can write 1 as the form of 1 only. Now 2 square, next square is 2, so 2 square is 4. Okay, 1 plus 3, 1 plus 3 is equals to 4, तो ये 1 plus 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ओके, 3 स्क्वायर को क्या लिख सकूँगा मैं? 3 स्क्वायर होता है हमारे पास में 9. आई कैन राइट 9 एज 1 plus 3 plus 5. आप इसको सम कर लीजिए. 5 plus 3 8, 8 plus 1 9. So I can write 9 as the form, write 9 as in this form. Similarly 4 square equals to 16. 1 plus 3 plus 5 plus क्या आएगा? Yes, you are right, 7. मेरे को इसका मतलब ये है कि आप समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, isn't it? तो आप इनको ऐड करेंगे, क्या होगा? 7 plus 3 10, 15, 16. So yes, we can write 16 in this form. Then the next square is 5 square, which is equals to 25. 25 can be written as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Yes. And then the next is 6 square equals to 36. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. And 7 square equals to 49 equals to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. Okay, so you see we are writing any square number as the sum of odd integers. Okay, so that is the topic of our this. Okay, so what is the topic here? We have square of a number as the sum of odd number. Okay, तो ये है इसका टॉपिक. ओके, यहाँ पे आज सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं. सर पहले हम हमको बता देते हैं और उसके बाद में टॉपिक लिखते हैं. तो टॉपिक बाद में लिखाने का बच्चों यही रीज़न है कि आपको मैं पहले बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं और फिर उसके बाद में टॉपिक बताना कि हमने ये किया है. ओके, सो दैट्स वाई वी यू अंडरस्टैंड मोर. ओके, आई थिंक ऐसा होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर 8 स्क्वायर को लिखना हो तो आप क्या करोगे आखिर में? सेम टू सेम और फिर 15 करोगे. ओके, तो इसका एक कंक्लूजन है, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ध्यान से पढ़ना इसको. ठीक है. एनी नंबर, विच नंबर? एन. ओके, क्योंकि हम कोई से भी नंबर की बात कर रहे हैं. तो एन कैन बी expressed as the sum of the first n. Okay, first n odd natural number. तो क्या समझ में आया इसको पढ़ के? ओके, वी विल read it again. The square of any number n can be expressed as the sum of the first n odd natural number. Okay, तो यहाँ देखोगे कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर n. ओके, और n यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है. तो सबसे पहले हम कोई सा भी स्क्वायर नंबर n ले लेते. तो n ले लेते, सपोज मैंने n लिया 1. ठीक है, मैंने 1 लिया, तो यहाँ पे भी 1 लिखा. द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर n, तो 1 का स्क्वायर करना हमको. कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस का मतलब है इक्वल, एज द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश. तो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास में? n क्या है हमारे पास में? 1. तो फर्स्ट पहला और नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास में? 1. तो आपको पास में आया कि 1 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर. सिमिलरली
अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लेता हूँ तो 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। सो अब क्या होगा कि द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर n, तो n हो गया 2, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द फर्स्ट और n ऑड नेचुरल नंबर। n क्या है मेरे पास में 2, तो फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर क्या है, एक है मेरे पास में 1, देन है 3, तो 1 कैन बी एक्सप्रेस मतलब है इक्वल एज द सम ऑफ 2 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 2 ऐड मतलब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, ओके, तो फर्स्ट का मतलब है कि पहले, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास में, पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1 एंड 3, तो 1 एंड 3, ओके। सो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या था, ठीक है। वी आर राइटिंग अ स्क्वायर नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर, ओके। So that is for all our today's lecture, students. Thank you very much for watching. Goodbye. Have a nice day and do your homework at time.